آداب اور آپ کی خدمت میں نمسکار۔ میں آپ کی آمد کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شیعہ دینی کالج لکھنؤ شیعہ کمیونٹی کا ایک پرانا انسٹیٹیوشن و تعلیمی ادارہ ہے، جس سے ہر مذہب و ملت کے بڑے بڑے اسکالرس، ججز و صحافی و پروفیسرس و لیکچررس، سیاستدان تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مگر ادھر کچھ برسوں سے اس ادارے میں اور اس انسٹیٹیوشن میں بڑے حملے اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، جن میں مالی بدعنوانی اور تعلیمی بدعنوانی اور کرپشن شامل ہے۔ پڑھے لکھے اور باصلاحیت لڑکے اور لڑکیوں کو نظر انداز کر کے ناخواندہ افراد کا سلیکشن کر دیا گیا ہے۔ اس سلیکشن کر دیا گیا ان سلیکٹ ہونے والوں میں کچھ کی ڈگریاں جعلی اور فرضی ہیں، اور کچھ کا سلیکشن بھاری رقم دے کر اور پیپر لیک کر کے ان کو کامیاب قرار دینے کا الزام ہے۔ اور اس طرح کچھ لیکچرر اپنے سبجیکٹ میں بالکل جاہل اور ناخواندہ ہیں، ایک لفظ بھی اپنے سبجیکٹ کا نہیں پڑھاتے ہیں، اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ اس طرح دیگر اداروں میں کرپشن اور گھپلے ہیں۔ اتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ملازم تو ہیں مگر ڈیوٹی نہیں دیتے اور تنخواہ ہر مہینے لیتے رہتے ہیں۔ جو لڑکے اور لڑکیاں پارٹ ٹائم پر پڑھانے والی ہیں، ان سے بہت ہی کم تنخواہ پر کام لیا جاتا ہے۔ کئی برس سے شیعہ عربی کالج، جو شیعہ کالجی کا ایک شعبہ ہے، کالج کی شیعہ عربی کالج کی گرانٹ جو طلباء کے وظیفے کے طور پر سیلف فائنانس سے لی جاتی تھی، معطل کر دی گئی۔ طلباء کو وظیفہ نہ ملنے کی وجہ سے شیعہ عربی کالج میں طلباء نے آنا ترک کر دیا، اور اب تو ان کی مرضی اور منشے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کہ بورڈ کی میٹنگ میں بھی ایک سینئر ممبر نے اپنی تقریر میں یہ بیان دیا کہ اب شیعہ عربی کالج کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ شیعہ عربی کالج کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا مقصد آپ کے سامنے آنے کا یہ ہے کہ اپنی قوم کے علماء کرام اور ذمہ دار تعلیمی حکومتی اداروں اور طلباء کے سرپرستوں اور قوم کے سیاسی اور سماجی لیڈران کے سامنے ان حقائق کو رکھ دوں تاکہ ایک قدیم قومی و تعلیمی ادارہ اور اس میں پڑھ رہے بچے اور بچیوں کا مستقبل تباہ و برباد نہ ہو۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک یہ بات ہے کہ کچھ اساتذہ ایسے ہیں تنخواہ لے کر پڑھانے کی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے ہیں، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ان کو خود ہی کچھ علم نہیں تو وہ بچوں کو تعلیم کیا دیں گے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کلاس لیتے ہوئے پڑھاتے وقت ویڈیوگرافی کرائی جائے، اور اس پر ایک ایکسپرٹ و ماہرین تعلیم کے سامنے ان کا امتحان اور ٹیسٹ بھی لیا جائے۔ یہ میرے معلومات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور اب آپ حضرات کو جو معلوم کرنا ہو وہ پوچھنا ہو تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کے جواب دے سکتا ہوں۔ اعجاز اظہر صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ جناب ابو طیب صاحب، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ ارم صاحبہ ہیں، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ سیما رانا ہے، ان کی ڈگری کی جانچ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اور بھی ہے
में फिलहाल मैंने आपके इतने नाम सामने लिए हैं और बकिया नाम भी जो है वो अभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी सामने आ सकते हैं। उर्दू अरबी कॉलेज के आप क्या हैं? मैं अरबी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और मुझे बोर्ड ऑफ मजलिस उलमा के प्रेसिडेंट ने मीटिंग करके बनाया था और मजलिस उलमा के प्रेसिडेंट आयतुल्लाह हमीद हसन साहब ने बनाया। मैं अरबी कॉलेज का जो है वो प्रिंसिपल हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अरबी कॉलेज बंद हो जाएगा? क्योंकि ऐसी तकरीबन 2020 से मुझे याद आता है कि 2020 में पूरी डेट लिखी हुई है। चंद महीने इन्होंने जो है वो तलबा का शहरिया दिया, लेकिन बाद में इन्होंने जो है वो शहरिया बिल्कुल यानी जिसको वजीफा कहते हैं स्कॉलरशिप देना बंद कर दिया। शिया अरबी कॉलेज में सिर्फ 15-16 लड़के ही एडमिट किए जाते हैं क्योंकि वो हाई कोर्सेज है जिसमें अरबी लिटरेचर है, तफसीर है और अरबी लिटरेचर है और इल्म कलाम जिसमें जो है वो अपने अकीदे के डिफेंस के लिए जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कुरान और हदीस की ये क्लासेस चलते हैं। तो इसमें नाज़मिया, सुल्तानुल मदारिस और जामिअतुत तबलीग और दीगर मदारिस के लड़के एडमिशन लेते हैं। हमको शिया कॉलेज में हम इसीलिए मुदर्रिसीन की तादाद सिर्फ 2 है। मैं पढ़ाता हूँ जो प्रिंसिपल के हैसियत से और मौलाना गुलाम बंदर मुसैयब साहब है और एक चपरासी होता है जिसकी बाकायदा जो है वो विक्टोरिया स्ट्रीट वाली बिल्डिंग में उसका बाकायदा पत्थर लगा है, स्टोन लगा है, बोर्ड भी लगा है, शिया अरबी कॉलेज और ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के ज़ेर निगरानी। एक सवाल हो रहा है मौलाना साहब, आपने कहा जिन लोगों के नाम लिए कि इनके पास फर्जी डिग्रियां हैं, लेकिन जब सिलेक्शन बोर्ड जो होता है, जो कमेटी होती है, जब किसी भी लेक्चरर का सिलेक्शन होता है उसके कागजात की जाँच की जाती है, कई मरहले से होकर गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसे मुंतखब किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो शिया कॉलेज की सिलेक्शन बोर्ड कमेटी है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है? देखिए, अगर भ्रष्ट ना होती और मनमानी न की जाती तो ये बात उठाने की जरूरत नहीं होती है और हम तहकीकात इसीलिए मांग कर रहे हैं और हमारे पास जो शिकायत आई है क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मेंबर भी हूँ और मजलिस उलमा जो सुप्रीम काउंसिल का उसका भी मेंबर हूँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जब शिकायतें मिलती हैं और करप्शन की शिकायत आती है तो जो जिम्मेदारी हमारी है हमने सारे मेंबरान को बता दिया, इसकी बाकायदा जांच होना चाहिए और तहकीक होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्या शिया कॉलेज में जॉब के नाम पर पैसा लिया जाता है? जी, इसका भी इल्जाम है और इसके ऊपर भी जो है जिन लोगों ने पैसे दिए हैं और इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं उनकी तो हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन शोहरत यही है कि एक बड़ी रकम लेकर के उन्होंने अपॉइंटमेंट किए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, पैसे उनके पास कम थे, उन्होंने हमारे पास शिकायत की है, उनके नाम भी हमारे पास मौजूद है और हमारी उनसे डायरेक्ट बात भी हुई है कि जिनको पैसे कम होने की वजह से उनको जो है वो नहीं किया गया है कि आप अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम बाकायदा खुद तो प्रिंसिपल बन नहीं गए हैं। बाकायदा बोर्ड ऑफ मजलिस उलमा की मीटिंग हुई थी जिसमें आयतुल्लाह हमीद हसन साहब की सदारत थी, मौलाना जाहिद साहब किबला थे, मौलाना जाफर अब्बास साहब किबला थे और उसके अलावा जनाब एजाज अदहर साहब भी थे, जबकि मेंबर नहीं है, ये एम्प्लॉई है, तैयब एम्प्लॉई है। उसके अलावा जो है जनाब यासूब अब्बास साहब थे जो खुद जो है वो मजलिस उलमा के सेक्रेटरी बने हैं। मजलिस उलमा का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, उसमें शर्त है कि मुस्तहिद हो या आलिम हो, किसी मदरसे का या इराक और ईरान का रिटर्न हो, वो भी मौजूद थे। उसमें मुझे जो है वो बनाया गया है और आप आयतुल्लाह हमीद हसन साहब मोतबर शख्सियत हैं और वो हमारे बुजुर्ग हैं और उनकी सरपरस्ती आप उनसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंस्टीट्यूशन में 6,000 तनख्वाह देते हैं, 6,000 पर जो है वो कोई अपने को जो है वो मैं प्रिंसिपल लिख के जो है वो क्या कहते हैं बदनाम। आप बताइए, ये हमारे सर पे पकड़ी है मामा है, क्या हम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं कि जाके कॉलेज में बैठ जाए अरबी कॉलेज के और अपने को प्रिंसिपल घोषित कर दें? ऐसा नहीं है। सर, एक बात नहीं सर आपसे, जैसा कि आप मुझे नहीं पता कि क्या पर्पस है, मुझे जानना चाहिए जिस तरह हम लोग पढ़ रहे हैं शिया कॉलेज में, जो हमारे चाचा लोग वहाँ पढ़े तो शिया कॉलेज पहले कंडीशन कुछ और थी, अब तो कंडीशन काफ़ी बेहतर है। पहले बेहतर की बात आप कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ शोबे में डेवलपमेंट हुआ है और क्या कहते हैं, चला जाहिर है कि जब नायब के लिए बुलाया था तो कुछ तो करना पड़ेगा ना।
जी सर, उससे पहले नई टीम नहीं आई थी, उससे पहले मैंने वहीं से लॉ किया है, हमारे चाचा लोगों ने लॉ वहीं से किया हुआ, हमारे साथी सब वहीं से लॉ किसी वाले लफ्ज़ में। तो जिससे पहले खंडहर पड़ा हुआ करता था, जैसे लॉ डिपार्टमेंट था पहले में, अब तक की दीवारें थी, अब अलहमद देखा जाए तो सफ़ेद दीवारें हो गई, अच्छी तरह से मैनेजमेंट बन गया और एक खूबसूरती नजर आती है सीआर कॉलेज में, जो कि पहले नहीं थी। पहले तो बात तो ये मालूम है कि अगर नहीं थी पहले, तो अब हालात के साथ साथ जो है वो पहले तो जो है वो बहुत सी चीजें नहीं थी। पहले जो है वो एसी भी नहीं लगे होते थे, पहले जो है वो क्या कहते हैं बेहतरीन में जो है वो मेजें भी नहीं होती थी, कैमरे भी नहीं लगे होते थे। तो जैसे जैसे सुन लीजिए, जैसे जैसे जो है वो हमारे यहाँ जो है वो ग्राउंड पे में मतलब स्टूडेंट बढ़ते रहे, सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज जो है वो होते रहे, वो उपलब्धि जो वो गवर्नमेंट देती है। कोई भी आएगा तो वो जो है वो अपने जमाने में वो क्लासेस तो आएगा। पहले के जो क्लासेस थे उनके जमाने में जो क्लासेस जो वो क्लासेस मिले उसको उन्होंने डेवलप किया। पहले जमाने में जो थे उन्होंने अपने जमाने में भी क्या कहते हैं ब्लॉक बनवाए और कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ। अब जो है वो इनके जमाने में हुआ तो कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों ना करते, इसलिए कि गवर्नमेंट उसमें पूछ रही थी। नाइट को जो लोगों को आना था तो जाहिर है कि उसमें जो अब तरक्की हुई, लेकिन जो है वो जब अब यह कि कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसको भी किसी एक्सपर्ट के जरिए से कंस्ट्रक्शन में सारा ठेका जो है वो जनाब अब्दुल तैयब साहब ने अपने जरिए लिया है, जबकि इसका कायदे से टेंडर निकलना चाहिए था और उसके बाद जो है तो आप अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है तो वो उसकी भी जानी तरीके से अब तरक्की उनके नाम भी हमने दिए। उसके अलावा कौन लोग और हैं तो जो शियाकारी में जो है वो तनख्वाह तो ले रहे हैं और जो है लेकिन काम जो है वो नहीं कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं है, क्लास नहीं लेते हैं, वक्त पे आते नहीं हैं, तो उन सबको जो है वो तालीमी कार्रवाई के लिए हमने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर को एक एक को जो है वो हमने भेजा और हाउस में भी हमने जाके जो कानून है जो दस्तूर है, हम सड़क पर अभी एहतजाज नहीं कर रहे हैं, अभी तो वो नौबत नहीं आई है, हम तब तो बिछा के धरना भी कर सकते हैं, हम जो है वो प्रदर्शन भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में रहकर। हम किसी हंगामे के लिए, किसी जो है वो क्या कहते हैं बार्गेनिंग के लिए और ना हमको मनसब चाहिए, ना हमको ओहदा चाहिए है, ना हमको जो है वो कोई हमारी डिमांड है कि आप इसको पूरा कर दिए। हमसे सुबह से आने से पहले भी हमसे बार बार डिमांड की जा रही थी सर या आप बात कर लीजिए यासूफ अब्बास साहब के फोन आ रहा था हमारे बड़े भाई के ऊपर। लेकिन याद रखिए कि मेरा नाम ज़हीर अहमद खान इफ्तिखारी है, न हम झूठते हैं न हम टूटते हैं, इसलिए कि ये तारीख हमारे बुजुर्गों की अमानत है। मैं शिया कॉलेज में जो मैं शिया अरबी कॉलेज का जो है वो प्रेसिडेंट हूँ और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का मेंबर हूँ और इंटर कॉलेज मैनेजमेंट में मैं। देखिए घपलेबाजी का जो वो सारी चीज़ें वो सामने आई हैं कि जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मसला है वो सिलेक्शन जो बदनामियाँ हो रही हैं कि 80 लाख रुपए लेकर या 85 लाख रुपए लेकर अपॉइंटमेंट किया गया है जिन लोगों का या जिनसे डिमांड जिन्होंने ये तो जिन लोगों का हो गया उनका तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उन्होंने कर दिया, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उन्होंने जो है वो सिलेक्शन कमेटी के सामने एहतजाज किया है और इसी तरीके से और लोगों का है जिनका नहीं हुआ उन्होंने बाकायदा हमको जो है वो घर पर आकर एहतजाज किया कि हमसे अपनी डिमांड की जा रही है और इस तरीके का। उसके अलावा जो है जो लोग जो है वो क्लासेज नहीं लेते हैं उनकी भी हमारे पास शिकायत आई है कि ये लोग क्लास जैसे तैयब साहब का नाम, जैसे जो है वो जनाब एजाज अतहर साहब का नाम और जो है वो इरम फातिमा का नाम, इस तरीके से और लोगों का जो तवील लिस्ट है आया कि ये लोग जो है वो क्लास नहीं लेने आते हैं, दीनियात के शोबे में है थियोलॉजी के, तो इन सब के जो है वो क्या कहते हैं शिकायत आई है। तो शिकायत का सुनना हमारा फर्ज है। हम वहाँ सिर्फ नाश्ता और खाने के लिए जो है वो शिया अरबी कॉलेज को शिया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में थोड़ी गए, हमें चुनाव ही किया गया है कि हम जो है वो सही बात को सही कहें और गलत बात को गलत